Hello friends, this is Meet Upadhyay and I welcome you all on the Atmanirbhar channel managed by PMCI. दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ रीडिंग एक्सरसाइज के बारे में. In our life, we are going to read so many of the things. We talk less or else we write less. But reading is such a type of exercise that we do a lot. And many of the students, those who are in the 10th standard, 12th standard or just preparing for the competitive exam, they face a lots of problem विद दी रीडिंग जो है इससे हम अपने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. लेकिन इसी रीडिंग टेक्निक्स के अंदर अपने एकेडमिक ईयर्स में स्टूडेंट्स को कई सारी प्रॉब्लम्स आती है. जैसे कि प्रॉब्लम्स आती है कि वो अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को प्रॉपरली मेमोराइज नहीं कर सकते, और इतना ही नहीं, वो जब पढ़ते हैं तो उसके साथ वो इजीली नोट्स प्रिपेयर नहीं कर सकते, या फिर किसी एक लंबे अरसे तक वो कोई एक चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते, और इसी के वजह से वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रीड नहीं कर सकते. 45 मिनट्स 1 आवर तक वो लोग रीड नहीं कर सकते, और यहाँ तक कि वो लोग कई दफ़ा स्लीपी फील करते हैं अपनी पढ़ाई के दौरान. तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, इस सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर. आई नो गाइज दैट नो वन कैन फोकस मोर देन 45 मिनट्स. 45 मिनट्स से ज़्यादा कोई पढ़ भी नहीं सकता, बट विद द टेक्निक्स येस इट इज़ पॉसिबल. सो गाइज द मेन क्वेश्चन इज हाउ आई एम गोइंग टू शेयर दिस टेक्निक विद यू. तो आज मैंने एक छोटा सा खुद के ऊपर एक टास्क, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई किया है. टुडे आई एम गोइंग टू रीड वन बुक. The book name is The Magic of the Lost Temple by Sudha Murthy. This is one of the most busiest book which was available in the lockdown at my home. So I just experimented with this book कि मैं इस बुक को completely आज one take में रीड करने वाला हूँ, यानी कि एक बार मैं अपना यहाँ पे सेटअप करके बैठ गया हूँ, and I am going to complete this book. In between this book, I will share some techniques of reading with you which I have personally experimented and I have used in my academic years, and right now even I am using in completing my competitive exams. While completing this book, I will share some of the techniques with you guys, and I hope these techniques will help you also in your academic years. So let's start with today's video with the help of this book. Talking about little bit about this book, The Magic of the Lost Temple is written by the Sudha Murthy. I think this book consists of 13 short stories, and the book consists of 194 pages. So I hope that it will be completed within 2 to 3 hours with the constant reading. So guys, before you start reading, you must have some basic preparation. So the basic preparation must consist of the first, your place must have fresh air or else you may feel sleepy. The second thing the must is the sitting arrangement. Your sitting arrangement must be like that your backbone always remains straight at the 90 degree or else slightly comfortable, but not more comfortable because it may you feel sleepy. The third thing that you must consist of that you must have arranged a stopwatch, or else if you guys are having a mobile, then you can use the stopwatch which is already installed in your phone. This helps you to remind you that you are here for a reading. Fourth and the most important thing that you must prepare, that you must keep your phone on the flight mode. Another thing that you guys must take is the pen, pencil and the notebook, so that you can easily write all the important points in the book. Another tool that you must be required, that must be the music. Sometimes music helps us to heal a lot and refreshments our mind as soon as possible. Another thing that you must have is the water bottle. अपने साथ अपनी पानी की बॉटल एक लेके बैठिए. Along with all these tools, you must add one more tool, that must be your iPad, or else it must be your phone, or else it must be your laptop, because it will also help you in the further techniques. And along with this, most importantly, you must have snacks, because it refreshes your minds as soon as possible. So I hope that you have collected all these things before you start the reading. And the most important 2 things that I would like to add in this. First, आपको अपनी नींद पूरी कर लेनी है. If you have not slept well, you are not able to read as focused as you want to be. And another thing that I would like to add in this,
that is to set your own target. My today's target is to complete this book. What is your target? Tell me in the comment section. So guys, reading this book, I would like to share some personal views about my reading. So क्या होता था ना कि जब मैं कॉलेज दिनों में था तो मैं बहुत ही स्लीपी फील करता था. जब भी मैं पढ़ाई शुरू करूँ तो आई फील वेरी स्लीपी. So what technique at that time I used to do was I speak aloud, and this is the first technique that I am going to share. हमेशा जब कभी भी आप कुछ भी रीड कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट उसे ज़ोर से बोलिए. यानी कि कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा ज़ोर से बोलिए ताकि आप उसकी आवाज़ सुन सको. इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न यही है कि जब आप ज़ोर से बोल के पढ़ते हो तो आपके ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं. जैसे कि देखिए, अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो तो यू आर यूजिंग योर ब्रेन एंड यू आर यूजिंग जस्ट योर आइज़, ठीक है. लेकिन जब आप बोल के थोड़ी सी आवाज़ निकाल के पढ़ोगे तो इवन योर ईयर्स आर यूज टू catch up that sound, and even your more sense organs will be utilized in that whole process. And I would like to add little bit more things into it, that always keep your index finger where you are reading, because it always adds some more sense organs in it, कि इसके वजह से आपका attention period जो है वो ज़्यादा रहेगा. तो you will be stay focused and you will be not get distracted easily. So this was the technique first. Use it. सो टॉकिंग अबाउट द टेक्निक नंबर 2 गाइज, टेक्निक नंबर 2 में मैं यूज़ करना चाहूँगा म्यूज़िक का. हमेशा पढ़ाई के दौरान बैकग्राउंड में एक लाइट म्यूज़िक बजना चाहिए. इसका क्या रीज़न है? इसका एक रीज़न एक बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों. ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड को बिजी रखने के लिए. मान लीजिए कि आप कोई चीज़ को रीड कर रहे हो और देन यू विल बी गेट बोर्ड ऑफ इट. तो तुरंत ही जैसे आप बोर हो जाओगे किसी एक सब्जेक्ट से, बिहाइंड द सीन वहाँ पे ऑलरेडी म्यूज़िक चल रहा होगा. आपका माइंड तुरंत ही उस म्यूज़िक को सुनेगा और थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा, तो आपको कुछ नई चीज़ मिलेगी. जनरली मैं अपने एकेडमिक ईयर्स में जब मैथ्स करता था तो मैं अपने बिहाइंड द मैथ्स में हमेशा म्यूज़िक चलाए रखता था. इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा रिफ्रेशन मिलता. तो ये टेक्निक भी काफ़ी फ़ायदेमंद है. यूज़ इट. Talking about the technique number 3. Technique number 3 is always try to keep making the notes. यानी कि जब भी आपने कुछ भी पढ़ा है तो तुरंत ही आप उसको अपनी कोई भी जो एक डायरी है उसके अंदर लिख लीजिए. डायरी के अंदर लिखने से 2 चीजें होती है. पहला, आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होकर कुछ नए सब्जेक्ट मिलता है आपके दिमाग को देखने के लिए. और इसी के साथ मैं और भी कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा. अगर आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है या कुछ भी आईपैड वगैरह है, तो अगर कोई भी टफ वर्ड लग रहा है तो डेफिनेटली आप उसके अंदर सर्च कीजिए. फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए कि अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हो लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं कि फ्रांस कहाँ है, तो तुरंत ही अपने आईपैड में या लैपटॉप में जाके इसे सर्च कीजिए कि एग्जैक्टली फ्रांस कहाँ है. इससे 2 चीज़ें होंगी, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा और वो जो सिर्फ टेक्स्ट थी उसके जगह पे अब आप इमेजेस को भी देखोगे तो यू विल बी गेट लिटिल बिट मोर रिफ्रेशमेंट थिंग्स. तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है मेरे लिए कि मैं हमेशा इस तरह से पढ़ता हूँ. लेकिन इसमें याद रखें कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. ऑलवेज स्टिक टू योर सब्जेक्ट. दूसरी चीज़ों पे नहीं चले जाना है. जो सब्जेक्ट आप लोगों ने सर्च करना है उसी के लिए आपको आगे बढ़ना है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टेक्निक नंबर 3. यूज इट. Talking about the technique number 4, I always used to keep stopwatch whenever I am reading. तो स्टॉपवॉच की मदद से होता क्या है? स्टॉपवॉच की मदद से मुझे ये हेल्प होती है कि हमेशा ये जो स्टॉपवॉच है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, जिसकी वजह से जब कभी भी मैंने उसे साइड में रखा हुआ है, इट रिमाइंड्स मी दैट व्हाई आई एम सिटिंग हियर. जब मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो डेफिनेटली मुझे पता है कि मैं किस पर्पज़ से बैठा हूँ. मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठा हूँ, तो डेफिनेटली स्टॉपवॉच रिमाइंड्स मी कि मुझे यहाँ पर पढ़ना है. आई हैव टू सेव माई टाइम इन रीडिंग. तो मैं कंटिन्यूसली उसे देख के रीड करता रहता हूँ.
इससे और भी एक फ़ायदा है। जनरली हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो हम कहते हैं कि मैंने 2 घंटे पढ़ाई की, मैंने 3 घंटे पढ़ाई की, लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। एक्चुअली होता ये है कि आप 2 घंटे में से सिर्फ 1.5 घंटा या 1 घंटे ही पढ़ते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि बुक्स लेने में, चीज़ों को हाईलाइट करने में वगैरह में कई सारा आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, बुक्स दूसरी बुक्स को शिफ्ट करने में। तो मैं स्टॉप वॉच का यूज़ ऐसे करता हूँ कि जितना टाइम मैंने रीड किया है उसको मैं प्ले पॉज करता रहता हूँ, ताकि मुझे एक परफेक्ट टाइम मिले कि 2 घंटे में से मैंने कितने घंटे पढ़ाई की है। तो स्टॉप वॉच 2 काम करता है। एक, हमें एग्जैक्ट टाइम देने का, एग्जैक्ट टाइम बताता है कि मैंने कितने घंटे पढ़ाई की है, और दूसरा एक कांस्टेंट रिमाइंडर का भी काम करता है कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है, व्हाट इज़ माय पर्पस। और ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है आपके टारगेट को अचीव करने के लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टेक्निक नंबर 4, यूज इट। टॉकिंग अबाउट द टेक्निक नंबर 5, दोस्तों इसमें एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। अगर आप टेक्निक नंबर 5 यूज़ करते हो तो इससे पहले आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। नींद पूरी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है, जो रीडिंग के लिए आप करने वाले हो, इसमें आप ज़्यादा एग्जॉस्ट हो सकते हो। जी हाँ, इस टेक्निक के अंदर आपको चलते चलते पढ़ना है। इट मीन्स रीडिंग अलॉन्ग विथ वॉकिंग। ये टेक्निक बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे आपका फोकस जो है वो 80 to 90% के बीच में रहता है। बहुत ही फायदेमंद चीज़ यहाँ पर ये साबित हो सकती है। लेकिन अगर आपको डिफेक्ट ऑफ विजन है, यानी कि अगर आप स्पेक्स पहनते हो, तो मैं इसे रेकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज यहाँ पर डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि फोकस को बार बार हिल जाने की वजह से आंखों पे बर्डन आता है। तो यहाँ पर ये डिस्क्लेमर के साथ मैं इसको सजेस्ट करना चाहूँगा, यूज़ कर सकते हो। यू कैन टेक अ 5 minute वॉक फॉर दिस एंड यू कैन इवन रीड दिस थिंग्स। वापस बैठ जाइए। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा आप चलोगे भी और साथ साथ में ज़ोर से आप बोलोगे भी और रीड भी करोगे, तो यहाँ पे आप ऑक्सीजन की कमी महसूस करोगे, यानी कि यू विल फील एग्जॉस्टेड एज सुन एज पॉसिबल। तो ये टेक्निक्स उस दौरान काम नहीं आती है। शॉर्ट टाइम के लिए ये बेहतरीन टेक्निक है, फोकस भी इसमें काफ़ी अच्छा रहता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द टेक्निक नंबर 5, यूज इट। So talking about the technique number 6. Technique number 6 is almost favorite for all the students. जी हाँ, ये टेक्निक जो है वो स्नैक्स से रिलेटेड है। पढ़ाई करने अगर बैठे हैं तो डेफिनेटली हम लोग अपने साथ में कुछ स्नैक्स लेके बैठेंगे। अब ये जो स्नैक्स है उसमें भी थोड़ा फेवरेबल अपना रीज़न होना चाहिए। जनरली मेरा पर्सनल है पफ्ड राइस, यानी कि जिसको हम कहते हैं ममरा। यहाँ पर हम लोगों को हमेशा कुछ ऐसा स्नैक खाना चाहिए कि जो जनरली स्पून से खाना चाहिए। मैं इसीलिए ये स्नैक प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें हाथ नहीं बिगड़ते हैं, स्पून से हम इसे खा लेते हैं और इजीली मुझे हैंड वॉश के लिए टाइम भी नहीं बिगड़ता है। इसके साथ साथ स्नैक्स के साथ साथ मैं बेवरेजेस को भी प्रेफर करता हूँ। एग्जैक्टली आई एम अ चाय पर्सन, आई डोंट प्रेफर कॉफ़ी। तो मैं अपने साथ ब्रेक्स के अंदर चाय यूज़ करता हूँ ताकि मैं रिफ़्रेश हो जाऊँ। एंड द बेस्ट थिंग, डोंट यूज़ स्नैक्स, डोंट यूज़ बेवरेजेस, द बेस्ट थिंग इज़ द वाटर। अब ये वाटर की टेक्निक हमेशा से काम करती है। कॉलेज डेज में हम लोग वाटर यूज़ करते थे, यानी ये नहीं कि मुंह पे डाल दिया, नींद उड़ गई, ऐसे नहीं है। हमेशा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहते थे। तो जब मान लीजिए कि अगर 45 मिनट्स तक हर थोड़े थोड़े ब्रेक पे अगर आपने पानी पिया है, तो 45 मिनट्स के बाद आपको एक पी ब्रेक लेना पड़ेगा, वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो जैसे अगर आप वॉशरूम जाते हो तो यहाँ पे आप आराम से 4 to 5 मिनट्स अपनी कंज्यूम कर लेते हो। तो यहाँ पर यह आपके लिए एक बेहतरीन शॉर्ट ब्रेक साबित हो सकता है। तो यानी कि बेवरेजेस या फिर स्नैक्स या फिर वाटर, इन तीनों में से आप कोई भी एक चीज़ का यूज़ करके अपनी रीडिंग टेक्निक्स को बढ़ा सकते हो, अपनी रीडिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टेक्निक नंबर 6, यूज इट। Truly amazing book by Sudha Murthy, guys. It was an amazing experience reading this book. It took me 4 hours to complete this book with 2 short breaks. It was not able to show the whole video on this YouTube video, so we just fast forwarded it. But truly amazing experience. So finally coming towards the conclusion, guys,
कंक्लूजन में दोस्तों कुछ ऐसा है कि यहाँ पर हर किसी का स्लीपिंग पैटर्न अलग होता है, ईटिंग पैटर्न अलग होता है, ऐसे ही हर किसी का रीडिंग पैटर्न भी अलग होता है। मैंने यहाँ पे कुछ टेक्निक्स बताई है जो मैंने पर्सनली एक्सपेरिमेंट की है और मुझे कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें लगी है। ऐसे हर किसी की अलग हो सकता है, हर किसी का पर्सपेक्टिव भी अलग हो सकता है। जैसे कि मुझे याद है कॉलेज डेज में मेरा एक दोस्त हुआ करता था, उसकी टेक्निक कुछ अजीब थी। जैसे कि वो कहता था कि मैं रात को 11:30 से 12 बजे तक सिर्फ मूवी देखूंगा, चाहे वो एग्जाम्स में 1 महीना ही क्यों ना बाकी हो। मैंने पूछा उसे क्यों, तो उसका रीज़न था कि व्हेन आई वो यूज टू वॉच मूवी एट द एंड ऑफ द डे ऑलवेज आई यूज टू ब्राइब माई माइंड, यानी कि वो अपने दिमाग को एक लालच देता था कि अगर दिन का तूने सारा काम कंप्लीट कर दिया तो रात को मैं तुझे एक मूवी दिखाऊंगा। फिर वो इंटरेस्टिंग मूवीज़ हो सकती है, स्कैम हो सकते हैं, कोई वेब सीरीज़ हो सकता है, नेटफ्लिक्स हो सकता है। तो यहाँ पर वो दिन के सारे ही काम बड़े ही एंथुजियाज्म के साथ करता था, बड़े ही जल्दी से करता था, सिर्फ इसीलिए कि अगर उसने सारे काम निपटा लिए तो रात को एंड में उसको वो मूवी देखने को मिलेगी। और वो सारी चीज़ें अपने माइंड गेम्स के साथ ही खेलता था। अगर उसने काम नहीं भी किया था तो वो अपने माइंड को उस दिन पनिश करता था कि आज हमें मूवी नहीं देखनी है। तो ऐसे कई सारी टेक्निक्स और भी कई सारी हो सकती है। इसके अलावा कई बच्चों को स्टिकी नोट्स बनाने की आदत होती है, माइंड मैप्स बनाने की आदत होती है, और इवन ऑडियो बुक्स भी होती है कि कई लोग ऑडियो बुक्स भी बनाते हैं। तो हर किसी का अपना अपना टेक्निक हो सकता है। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, if you are using these techniques which I have already mentioned in this video, share us your experience in the comment section below, and you can also send your suggestions on our social media platforms, just like on the Instagram page and the Facebook page. The IDs are already given in the description box. Don't forget to subscribe our channel guys, because it keeps us motivating. Don't forget to share this video with your friends and family members and be a helping hands for others too. Don't forget to comment also even guys, and press the bell icon for getting the notification of our upcoming videos. Stay tuned, stay healthy till the next video come guys. Goodbye friends.